ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. So topic, as you already know, is stress management. I think this word has uh, gained a lot of popularity in the last 7 to 8 months, especially after Corona attack. We have seen a lot of people who are hale and healthy, who are well-to-do, from well-to-do families, well-settled professions, well education, a lot of degrees, a good job, good family, but still undergoing a lot of stress because of all what is happening around. And people have started discussing about it. We have seen that in India, somebody going to a psychiatrist is considered a sin. Uh, if somebody going to a mental hospital, it is considered as a mad. So people generally avoid talking to somebody that they are going to show to a psychiatrist. But in Western countries, it's a trend. We will see in some time from now that what the data speaks like about the stress, depression, all these cases. But in India also people have started talking about it because of the very at a very fast speed. We are catching up with the developed countries, and we are catching up on the numbers of stress as well. So to start with, we'll discuss what is stress. So this presentation has been divided into mainly two parts. One is a little bit background, which will tell you about some setting the stage about the stress, what the stress is it good, is it bad, is always good, always bad, what are the causes and what solution generally people apply. So I'll not spend much time because I need to talk to you about the later half of this presentation in great detail. So please bear with me if I just read and turn on the slides, move to the next slides. Okay. So, and another thing is regarding the language, language has been told to me, English, Hindi, whatever. Generally, we see that we are good in expressing our expressions in Hindi. लेकिन मैंने देखा है कि जब पति पत्नी की लड़ाई होती है तो पता नहीं क्यों दोनों इंग्लिश में बात करना शुरू कर देते हैं. मतलब मेरे साथ तो ऐसा होता है. तो मैंने सोचा कि हिंदी में भी हम इसको सेशन को दे सकते हैं. So stress, what is stress? So I'll speak in both the languages. I think that's more comfortable. Stress आप पढ़ सकते हैं इसको. It is state of mind which distorts comfortable way of living, and which actually hampers logical thinking. When we are stressed, तो हमारा दिमाग जो है लॉजिकल काम करना बंद कर देता है. वो इमोशन बेस्ड पे या फीलिंग बेस्ड पे काम करता है और सडन इम्पल्स डेवलप होती है एंड वी रिएक्ट टू सिचुएशंस. एंड इट एक्चुअली डिस्टॉर्ट्स. हम बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं द वे, फॉर एग्जांपल वी वर लिविंग वेरी कंफर्टेबल लाइफ, सडनली एक इतनी बड़ी डिजीज आ गई जिसको कोप अप करने के लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं थे, और प्रिपेयर्ड ना होने की वजह से हम अब समझ नहीं पा रहे हैं कि हाउ टू डील विद इट. नाउ slowly we have learned to live with masks and and sanitize and all. So धीरे धीरे I think we will be able to cope up with this. So ये हमारे comfortable way of living को attack करता है और logical thinking को attack करता है. And not able to move the slide. Yeah. And stress is always not bad. We all know कि एग्जामिनेशन से पहले, एग्जामिनेशन के पहले लास्ट एक महीने में जितनी हमारी तैयारी होती है, मुझे नहीं लगता कि पूरे साल में अपनी तैयारी करते हैं. और एग्जामिनेशन के लास्ट 10 डेज में जो तैयारी होती है और ड्यूरिंग एग्जामिनेशन तैयारी होती है. मुझे आज भी याद है एक सब्जेक्ट को विच वाज बिजनेस मैनेजमेंट. वो मैंने केवल और केवल एग्जामिनेशन के ब्रेक में पढ़ा था, यानी कि वन एग्जामिनेशन से दूसरे एग्जामिनेशन में. और मैंने पूरी किताब पढ़ डाली थी 3-4 दिन के अंदर ही, जो मुझे पढ़ने में पूरा साल लगा था. So sometimes stress is good. So you can see this curve at एक certain level तक अगर हमारे पास stress आता है तो हमारी performance बढ़ती है. You can see calmness में performance सबसे कम है और धीरे धीरे ये ऊपर जाती है जैसे जैसे stress का level बढ़ता है. एंड इसको हम यूज स्ट्रेस कहते हैं, इसलिए स्ट्रेस नहीं कहते. और धीरे धीरे ये परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करता है. अल्टीमेटली अगर स्ट्रेस का लेवल कंटेन नहीं किया जाए तो हमारी परफॉर्मेंस को बिल्कुल गिरा देता है. ठीक है. So stress is not always bad. Okay. Next thing.
finding some difficulty in moving the slide. Yeah, okay. So how big is the problem? You can see the facts here. I will not go into detail, lot of detail. You can see all these, you can read out all these things. The most alarming fact out of this is the one which says maximum stress at the age of 18 to 24. This is the time when our energy, we are full of energy. हमारे अंदर पूरी energy होती है, हमारी body एकदम young होती है, full of enthusiasm and everything. But still at this age, most of the cases of stress जो कि इस age factor में आ रहे हैं, इस age group में आ रहे हैं, very alarming. You can see the data and I will show you some more data here about India. So all this data will tell you that every third person, and this is some, I think, a little old data. So कुछ समय पहले तक the fact was that every third person in America was going to a psychiatrist. यानी कि every third person, यानी कि इतने psychiatrist तो नहीं है वहां पर, यानी कि a psychiatrist also was going to a psychiatrist. And this is a trend in India. अगर आपको अपना प्रोफेशन चुनना है तो इंडिया में नेक्स्ट कुछ सालों में, मे बी नेक्स्ट 50 इयर्स तक, साइकेट्रिस्ट का प्रोफेशन बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि ये स्ट्रेस बड़ी तेजी से कैचअप कर रहा है. तो ये डाटा है विच यू कैन रीड आउट योरसेल्फ. बिकॉज ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट. These two slides actually show us how big is the problem. It's a huge problem. Number is growing very rapidly. Okay, symptoms क्या है इसके, ये भी आप जानते हैं जनरली. Headache, crying, anger, insomnia. So we have categorized in emotional, behavioral, physical symptoms. Okay, so symptoms: emotional, worrying a lot, trembling, nightmares, nervousness, bursting into tears. Again, I'm not going to go into detail about these. Okay, behavioral, feeling tired. जब हम बहुत ही मेंटली बहुत ही हेल्दी होते हैं तो ऑफिस में कितना भी काम हो हम थोड़ा फ्रेश फील करते हैं, लेकिन अगर हम स्ट्रेस्ड आउट होते हैं तो जरा सा भी ऑफिस का काम हमें बिल्कुल थका देता है. एंड यू कैन रीड आउट decrease efficiency, confusion, lack of attention, forgetfulness, irritability, loss of interest in the things. And then physical, stomach upset. हाँ, this is very practical. I have seen this. Examination के दौरान कुछ खाते ही मन करता है टॉयलेट भागो, कुछ बटरफ्लाइज होती रहती हैं और लगता है बस टॉयलेट जाना चाहिए. And a lot of others: headache, chest pain, breathlessness, palpitation, cold, skin complaints. Okay. Now, one of the greatest leader in the world, in the history of the world, Arjun, who is one of the 5 Pandavas, he also got stressed out during the Mahabharata fight. And before the fight, he said certain words which showed the same symptoms. उसको वही symptom आ रहे थे जो अभी हमने सुने. Let's see. This is from Bhagavad Gita, chapter 1, verse number 28, in which Arjun says, "My dear Krishna, seeing my friends and relatives present before me in such a fighting spirit, I feel the limbs of my body quivering and my mouth drying up." मुंह का सूखना, बॉडी को कपकपाहट होना, बाल खड़े हो जाना, पसीना आना, ये कुछ सिम्टम है जो कि हम अर्जुन के अंदर देख सकते हैं. माय होल बॉडी इज ट्रेम्बलिंग, बाल खड़े हो रहे हैं, मेरे हाथ से मेरा गांडी जो ग्रेट गांडी वो मेरे हाथ से स्लिप हो रहा है, छूट रहा है. बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ जलन जलन सी. बर्निंग सेंसेशन. ठंड में भी गर्मी लगने लगती है, ऐसा फील होगा. ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है. So these are some of the symptoms from Bhagavad Gita. Arjun under stress. Why we are saying this? We are saying because most of our solution will be based on the scriptures. हमारे जो solution आज हम discuss करेंगे वो solution वही होंगे जो भगवान ने, कृष्ण ने अर्जुन को दिए. हम देखेंगे कैसे हमारी लाइफ में भी वो स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं. इसलिए the context is Arjun was under stress, a great stress. He said, I am unable to stand. खड़ा नहीं हो पा रहे थे, इतना ताकत नहीं रही उस व्यक्ति के अंदर. I am forgetting myself. Forgetfulness. My mind is reeling. I see only cause of misfortune. चारों तरफ निराशा ही निराशा दिखती है, ऐसा उन्होंने भगवान को बोला. So total stressed out situation. Why does stress arises? There are some external reasons. There are some internal reasons. External reasons हो सकते हैं like environment, pollution. Pollution can be one. A bad working environment, जिस जहाँ हम ऑफिस में काम करते हैं. Lot of stress. Somebody departed. I mean, some close one. हमारा कोई करीबी व्यक्ति संसार छोड़ के चला गया.
हमारी नौकरी चली गई, देयर कैन बी सो मेनी रीजंस. बट एक्चुअली में एक्सटर्नल एंड इंटरनल विल सी व्हाट पीपल डू व्हेन दे आर स्ट्रेस्ड आउट. सॉल्यूशंस फॉर एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स. जनरली लोग ये सोल्यूशन अपनाते हैं, लोग कुछ एडिक्ट बन जाते हैं. हाँ, दे स्टार्ट ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ड्रग्स, गैम्बलिंग, जस्ट दे वांट टू फॉरगेट देमसेल्व्स. क्योंकि जब वो अपने आप को भूल जाते हैं तो स्ट्रेस्ड आउट सिचुएशन से उन्हें लगता है मैं बाहर निकल गया. बट दिस इज नॉट द रियलिटी. हैव यू हर्ड अबाउट ऑस्ट्रिच? ऑस्ट्रिच एक ऐसा बर्ड है, बहुत ही ऊंचा होता है, आई डोंट नो 8 to 10 feet और समथिंग. लेकिन जब उसके पीछे कोई खतरा आता है तो भागता है, और भाग के ज्यादा तेज तो भाग नहीं पाता है, ना ही वो उड़ पाता है. तो वो अपनी गर्दन को रेत के अंदर छुपा लेता है, और जैसे ही उसकी गर्दन रेत के अंदर जाती है उसको लगता है नाउ आई एम सेफ. द एंटायर बॉडी, ह्यूज बॉडी इज आउट फेसिंग द डेंजर. बट उसको लगता है, तो दिस इज लाइक दैट. Resorting to these kind of solutions is actually not solving the problem, but we are thinking we are safe. Okay, external solution, some or more solution we people are doing nowadays are walk karna, deep breathing, music, entertainment, holidays, yogic exercise, massage, enough sleep. Have you heard work hard and party harder? Why do we do party harder? Because we are stressed out in those 5 days or 6 days, whatever, during our office. हम बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, और उसको दूर करने के लिए, उस एंजाइटी से निकलने के लिए हम पार्टी करते हैं. तो दिस इज वन ऑफ द स्ट्रेस बस्टर. कई जगह ऑफिसों में आजकल वो बॉल आती है, उसको स्ट्रेस बस्टर बॉल, उसको लोग उससे भी स्ट्रेस बस्ट करते हैं. तो देयर आर लॉट ऑफ एक्सटर्नल रीजन, बट एक्चुअली आर दे हेल्पफुल? हमें अगर कोई बॉयल हो जाता है और हम वहां पर कुछ ऑइंटमेंट लगा देते हैं तो देखते हैं कि वो दूसरी जगह से आ गया, यहाँ पर लगाते हैं तो देखते हैं वो यहाँ से आ गया, है ना. सो एक्चुअली द प्रॉब्लम इज नॉट दैट बॉयल, प्रॉब्लम इज इन द ब्लड. ब्लड में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एक जगह सॉल्यूशन लगाने से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, कहीं और से निकल जा रही है. सिमिलरली जो भी हम एक्सटर्नल सॉल्यूशन लगाते हैं वो रियल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता है. व्हाई? एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस. व्हाई? बिकॉज स्ट्रेस इज नॉट एक्सटर्नल, स्ट्रेस इज समथिंग विच इज इंटरनल. स्ट्रेस कभी भी बाहर की सिचुएशन से नहीं आता है. स्ट्रेस आता है कि हम बाहर की सिचुएशंस को कैसे कोप अप करते हैं, कैसे फेस करते हैं, कैसे डील करते हैं, और ये हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे. दैट इज द टॉपिक टुडे. सो फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स we'll try to go into little detail, although we have only now 30 minutes, and I want to leave some things, maybe 5 to 10 minutes on question and answer. So what is the root cause? The root cause is where the stress resides. The stress resides in the mind. It is not outside. It is not due to pollution. It is not due to your boss. It is not due to corona. It is not due to any other thing. It is due to the mind. So mind क्या चीज है? मेडिकल साइंस के हिसाब से माइंड जैसी कोई चीज तो एग्जिस्ट नहीं करती. वी नो अबाउट ब्रेन, बट व्हाट इज माइंड? व्हाट इज मन? दिस इज माइंड. सो इन आवर बॉडी, हम बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. सिमिलरली लाइक वी कैन से दैट वी वियर सम कोट और ए स्वेटर. स्वेटर के अंदर हमारा कुछ शर्ट होती है, और शर्ट के अंदर हमारे वेस्ट एंड इनर गारमेंट्स होते हैं. तो उसी तरीके से बॉडी को भी 3 पार्ट में डिवाइड करा जा सकता है. दिस ग्रॉस बॉडी जो हम देख पा रहे हैं, दिस माउथ, इज आईज एंड नोज एंड ईयर्स एंड स्किन, हेयर्स, दिस इज कॉल्ड ग्रॉस बॉडी. और हिंदी में स्थूल, स्थूल शरीर. और उसके अंदर हमारा इनर बॉडी होती है. इनर बॉडी क्या है? विच इज कॉल्ड सटल बॉडी, यानी कि सूक्ष्म, विच यू कैनॉट सी. वी कैनॉट सी दैट, बट वी कैन डेफिनेटली फील दैट. एंड दैट सटल बॉडी कंसिस्ट ऑफ माइंड, फॉल्स ईगो एंड इंटेलिजेंस. ये 3 चीजें, ठीक है? मन, बुद्धि और अहंकार. सो आवर डिस्कशन टुडे विल बी फोकस्ड ऑन द फर्स्ट टू, not first two, sorry, first and third one, which is mind and intelligence. क्योंकि हमारा डिस्कशन टुडे इज ऑन स्ट्रेस. जब हम कुछ और डिस्कशन करेंगे तब हम बताएंगे व्हाट इज फॉल्स ईगो. ओके, एंड द थर्ड बॉडी इज आवर सोल. Again, we will not discuss anything about soul. So if you think soul does not exist, no problem, keep thinking that. We are not going to discuss that. So but whatever we have heard from the scriptures, from the learned people, these are 3 divisions of the body: soul, and then subtle body, and then the gross body. Okay, so we are focused on subtle body, which is mind and intelligence. Okay, what does the mind do?
माइंड क्या करता है? माइंड इज स्टोर हाउस ऑफ थॉट्स एंड डिजायर्स एंड इंप्रेशंस। ये इंप्रेशंस, अगर आप इसी बर्थ को मानते हैं, अगर आप बर्थ आफ्टर बर्थ नहीं मानते हैं लाइफ को, तो भी आप ये समझ लीजिए कि जो भी बचपन से हमने देखा होता है, हमने सुना होता है, हमने फील किया होता है, वो सारे इंप्रेशंस हमारे माइंड में होते हैं। और जो भी हम लाइफ में डिसीजन लेते हैं उसी इंप्रेशंस के हिसाब से लेते हैं, जैसी हमारी अपब्रिंगिंग हुई होती है। कोई भी लाइफ में डिसीजन लिया होता है तो हम, जैसे कि बचपन में हमारे साथ अगर बहुत बड़ा किसी का कुछ हादसा हो गया होता है आग से या वटेवर, सो हो सकता है वो लाइफ लॉन्ग उससे डरता रहे, नहीं नहीं ये वाला काम नहीं करेंगे। तो उसी तरीके से ये इंप्रेशंस होते हैं जो हमारे माइंड में होते हैं। एंड थॉट्स एंड डिजायर्स, डिजायर्स क्या होती हैं? हमारी इच्छाएं। हमारी अंदर इतनी इच्छाएं होती हैं कि वी कैन नॉट काउंट देम। ऐसा बोला जा सकता है कि जितने की समुद्र में मछलियां होती हैं, समझ लीजिए उतनी डिजायर्स हमारे अंदर होती है। लेकिन समुद्र के सरफेस पे कभी कभी कोई एक मछली ऐसे उछलती हुई दिखती है, कभी कोई एक मछली ऐसे उछलती हुई दिखती है। सिमिलरली द डिजायर्स कम आउट। हाँ, ऐसे जैसे हम ग्रो करते हैं, अलग अलग तरह की डिजायर्स आती है, वो सारी हमारे मन में होती हैं। फ्रॉम चाइल्डहुड हमारे अंदर कुछ डिजायर्स डेवलप हो रही होती हैं, जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं वो डिजायर्स मैनिफेस्ट होती जाती है। एंड थॉट्स, तो फॉर एग्जाम्पल हम किसी चीज को के बारे में थॉट्स डेवलप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अचानक से मैं अगर आपको बोलूं कि सर्दी का मौसम है और इस सेशन के बाद में अगर थ्राइव की तरफ से एक एक समोसा और एक एक चाय हो जाए तो मजा आ जाए, बस ये सोचते ही समोसा दिमाग में आ जाता है। उसके थॉट दिमाग में आता है, थॉट होते ही डिजायर आती है, हाँ मे बी वी शुड गेट वन। अगर थाई वाले नहीं भी देंगे तो हम जाके खरीद लेंगे, नो प्रॉब्लम। इतनी डिजायर स्ट्रांग हो जाती है ना। तो इस तरह से ये माइंड के काम होते हैं सारे, ठीक है। हाउ डज इट डिफरेंशिएट फ्रॉम इंटेलिजेंस, विल डिस्कस नाउ। सो माइंड का काम समझ में आ गया आपको? फीलिंग्स, ऑल द फीलिंग्स, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, यू कैन से। हाँ, थिंकिंग जैसे मैंने बोला, सोचना किसी विचार को, फीलिंग उसको फील करना, गर्मा गर्म समोसा फील कर सकते हैं हम। एंड देन विलिंग, आई चाहिए चाहिए चाहिए, इसको यही चाहिए। दिस इज द एक्टिविटी ऑफ माइंड। ओके, व्हाट इज द एक्टिविटी ऑफ इंटेलिजेंस? Intelligence, as you can see, discrimination between right and wrong. This is very important. We are not animals, huh? We always differentiate between a right thing and a wrong thing based on our impressions, whatever. We are not going to discuss what is right and what is wrong because that is not the session today. Maybe later we can do that. But बेस्ड ऑन हमारी अपब्रिंगिंग, हमारे पेरेंट्स ने हमें क्या समझाया, कौन सी कंट्री के अंदर हम हैं, कौन सी कंट्री के अंदर कौन से स्टेट में हम हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लॉट ऑफ थिंग्स वी अंडरगो सिंस चाइल्डहुड विल एक्चुअली डिटरमिन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर अस। हम उसका एक ढांचा बना लेते हैं, एक स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग बना लेते हैं, उसके हिसाब से हमें डिस्क्रिमिनेट करते हैं, ये सही है ये गलत है। सम पीपल में से गोइंग टू टेम्पल इज राइट थिंग टू डू, गोइंग टू पब मे नॉट बी राइट थिंग। सम पीपल में से नो नो, इतना तो बनता है, इतनी मेहनत करने के बाद थोड़ा सा पब में जाके थोड़ा एक आध बियर पी लेंगे तो व्हाट विल हैपन। सो फॉर देम गोइंग टू दैट इज राइट थिंग। सो मे बी, हाँ, सो बट उनके लिए मे बी गोइंग टू अ कसिनो may not be right thing, or for some going to a legal casino may be right thing, but going doing some kind of a what you call match fixing where underworlds are involved may not be the right thing. So again, different people discriminate based on their intelligence. So intelligence work primarily is mind बहुत सारी desires करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी जिसको डायबिटीज है, माइंड बोलेगा गुलाब जामुन, गर्मा गर्म गुलाब जामुन। हम्म? तो माइंड ने इच्छा करी, थिंकिंग करी, फीलिंग करी, विलिंग करी, लेकिन इंटेलिजेंस बोलेगी नो, नो नॉट एट ऑल। मिस्टर, हैव यू फॉरगॉटन कि आपकी कितनी शुगर चल रही है, नहीं खानी है। तो इस तरह की फाइट चलती रहती है। माइंड कहेगा नहीं नहीं, एक से क्या हो जाएगा, एक ही तो है, हाउ डज इट मैटर, कोई देख भी नहीं रहा है, वाइफ भी नहीं है यहाँ पर, कोई बोलने वाला नहीं है, खा लेते हैं यार। हाँ, तो इस तरह की फाइट, इंटेलिजेंस बोलेगी कुछ लॉजिक देगी, माइंड कुछ लॉजिक देगा। जैसे कि सवेरे सवेरे आपको जिम में जाना है, मॉर्निंग में जिम में जाना है, इंटेलिजेंस कहती है चल बेटा उठ, बहुत कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। माइंड कहता है यार बहुत सर्दी हो रही है, थोड़ी देर, 5 मिनट 5 मिनट, 5 मिनट करते करते आधा घंटा हो गया। फिर माइंड कहता है यार आधा घंटा तो हो ही गया, अब कल जाएंगे कल।
इंटेलिजेंस के नो वे, आज उठना ही पड़ेगा। माइंड कहता है नहीं नहीं आज नहीं, कल से उठेंगे, आज बहुत सर्दी है, कल मैं ऑफिस से लेट आया था, लॉट ऑफ रीजन, एंड ये फाइट चलती रहती है हमेशा। ठीक है, सो इंटेलिजेंस, अगर व्यक्ति वाकई में इंटेलिजेंट है तो उसके अंदर ये दो चीजें होंगी, डिस्क्रिमिनेशन एंड डिटर्मिनेशन। कितना वो डिटरमिन्ड है उस चीज के लिए, उतना ही स्ट्रांगली वो इंटेलिजेंट है। जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम वी गिव अप, हम माइंड के आगे हार जाते हैं, ओके, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिटर्मिनेशन। So this is the activity of intelligence. I think it is clear now. Okay, so what is stress control? Controlling the stress or bringing it under the desired level is actually endeavor to control the mind. Hmm? Now we will discuss some of the things. Okay, what is mind? What is Bhagavad Gita says? Because our solutions are based on Bhagavad Gita. So Bhagavad Gita, Arjuna said, Arjun ने बोला कि मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, एंड कृष्ण ने कुछ आंसर दिए। कृष्ण ने क्या बोला, सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि फॉर हिम हु हैज कॉन्कर्ड द माइंड, जिसने माइंड को जीत लिया है। माइंड सबसे बड़ा मित्र है, लेकिन जिसका माइंड उसके कंट्रोल में नहीं है, माइंड सबसे बड़ा शत्रु है उसी व्यक्ति का। वास्तव में हमारा कोई और शत्रु नहीं होता है, हमारा माइंड ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु होता है, क्योंकि वो हमसे कुछ कुछ ऐसे काम करा देता है जिसके लिए हम जीवन भर पछताते चले जाते हैं। वो हमारी इंटेलिजेंस को हरा देता है। तो इसलिए माइंड सबसे बड़ा मित्र भी है और माइंड सबसे बड़ा शत्रु भी है। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि यानी कि इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी, इट्स अ टफ फाइट। ओके, सो द फाइट इज, द बाउट इज बिटवीन माइंड एंड इंटेलिजेंस। 10 9 8 so bout is about to begin. Okay, how to control the mind? So we discuss about the chariot model. This model is coming from Bhagavad Gita. Again, the solution is coming from Bhagavad Gita, and here it is said कि mind कौन है। इन सब में से आप जानते हैं कि mind कौन है? So we can see these 5 horses, and then we can see this कोई आदमी है जो कि पीछे बैठा हुआ है, बड़ा घबराया हुआ, परेशान सा, और ये कोई आदमी है जिसने ये चाबुक को पकड़ रखा है और ये चाबुक से सारे घोड़ों को कंट्रोल किया हुआ है। सो इससे हमें क्या पता चलता है? वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। द लेसन इज दीज 5 हॉर्सेस एक्चुअली आर 5 सेंसेस। आंख, नाक, कान, मुंह और ये त्वचा। दीज आर द सेंसेस। इनके थ्रू माइंड काम करता है। जब हमारी जीभ में कोई बहुत टेस्टी चीज टच करती है तो माइंड तभी उसकी फीलिंग करता है। यानी कि माइंड को काम करने के लिए इन सेंसेस की जरूरत पड़ती है। जब माइंड किसी दृश्य को देखता है तो उसके अंदर इच्छा पैदा होती है उसको प्राप्त करने की। उसी तरह जब कुछ अच्छा सा म्यूजिक सुनता है तो उस सॉन्ग को डाउनलोड करने की इच्छा होती है, व्हाटएवर। तो माइंड को काम करने के लिए इन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए माइंड, ये जो चाबुक है, ये चाबुक मन है जिसने इन घोड़ों को पकड़ रखा है। क्योंकि माइंड की इच्छा पूरी करने के लिए ये इंद्रियां, ना ये सेंसेस भागती हैं घोड़ों की तरह। जैसे अगर मेरा मन कर रहा है, जैसे मैंने बोला बहुत हो गया, ये मिस्टर रुक्मिणी जीवन ने समोसा समोसा बोल के बहुत ही ज्यादा इच्छा पैदा कर दी है। इमीडिएटली आफ्टर द क्लास विल गो टू हैव समोसा। हाँ, स्कूल ऑफिस जाने में, सॉरी घर जाने में लेट हो रहा है, व्हाटएवर, हम लेकिन जाके छोड़ेंगे। तो ये जो मन ने इच्छा पैदा करी वो हमारे 50 60 70 80 90 100 किलो के शरीर को उठा के ले जाएगा। नहीं जाएंगे, चाहे थोड़ी देर वेट क्यों न करनी पड़े, है ना। एंड फॉर दिस सिमिलरली, कभी किसी रेस्टोरेंट में, अच्छे से रेस्टोरेंट में खाने के लिए हम बहुत किलोमीटर दूर तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सो माइंड इज वेरी स्ट्रांग, वो पूरे शरीर को हिला के छोड़ता है जब तक उसकी इच्छा पूरी ना करी जाए। इसलिए इसको चाबुक बोला गया। लेकिन इस चाबुक के ऊपर, इस चाबुक को पकड़ने वाला है हमारी इंटेलिजेंस, जो कि डायरेक्शन देता है, इधर मुड़ जाओ या इधर मुड़ जाओ। इट्स लाइक यू आर होल्डिंग द स्टीयरिंग ऑफ अ कार। तो आप कार को बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, यहाँ वन वे है, यहाँ से नहीं जाना है, नहीं यहाँ पे ट्रैफिक मिलेगा, यहाँ से नहीं जाना है, दिस इज द वे, यहाँ से जाना है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इंटेलिजेंस डिस्क्रिमिनेट करती है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, और नहीं इधर को जाना ठीक है, नहीं इधर को जाना ठीक है। तो इसको हमारी बुद्धि कहते हैं। अगर हमारे घोड़े और ये मन बहुत स्ट्रांग होता है तो ये जो ड्राइवर है इसके हाथ से ये चाबुक छूट जाती है, और घोड़े अपनी मर्जी से जहां भागना चाहते हैं भागते हैं। और ये जो पीछे हेल्पलेसली बैठा है, एंड दिस पर्सन इज योर सोल। एनीवे, सोल के बारे में डिस्कस हम नहीं करेंगे। सो दिस द चैरियट मॉडल। ग्रॉसली आप समझिए कैसे हमें माइंड को कंट्रोल करना है। ओके, नाउ अनदर थ्योरी। सो सपोज अ क्वेश्चन इज बिटवीन अ गुड डॉग एंड अ बैड डॉग, अगर फाइट होती है तो कौन सा डॉग जीतेगा? कई लोग बोलेंगे यू नो व्हाट, ये बुरे लोगों का जमाना है भाई,
बुरा ही जीतेगा, बुरे का ही बोलबाला है। तो कहा नहीं नहीं नहीं, अच्छे की तो जीत होती है। एक्चुअली में ना तो बुरा जीतेगा ना अच्छा जीतेगा, जो दोनों में से ज्यादा स्ट्रांग है वो जीतेगा। स्ट्रांग कैसे बनाया जाता है? स्ट्रांग बनाया जाता है फूड देके। किसको क्या खाना दिया जा रहा है, किसको क्या दिया जा रहा है, आई डोंट नो, किसी को दूध ही जा रहा है, किसी को मीट भी साथ में दिया जा रहा है, जो भी है, जिसको भी ज्यादा बढ़िया फूड मिल रहा है वो ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगा और दूसरे को हरा देगा। उसी तरह से माइंड और इंटेलिजेंस की फाइट में कौन जीतेगा? जिसको ज्यादा फूड मिल रहा है। व्हाट इज द फूड ऑफ माइंड एंड व्हाट इज द फूड ऑफ इंटेलिजेंस? फूड ऑफ माइंड इज, जितनी ज्यादा इसकी बात मानते जाएंगे उतना ज्यादा ये स्ट्रांग बनता चला जाएगा। एक ऑफिस के अंदर एक नॉर्मल सा ऑफिसर, अगर उसकी बात कंपनी का हेड मानता चला जाए तो थोड़े दिनों में वो सबके ऊपर अपना सिक्का चलाएगा, बोलेगा हाँ करता है या बोल दूं जाके अंदर, क्योंकि उसकी बात सुनी जा रही है। जितना ज्यादा उसको सुनोगे उतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। जिसकी जितनी से होती है उतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। इसीलिए माइंड की बात हम जितनी सुनते जाएंगे माइंड उतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो इसलिए हमें किसकी बात सुननी है? सबसे पहले समझिए इंटेलिजेंस की। हमें इंटेलिजेंस को स्ट्रांग बनाना है। इट इज नॉट जस्ट डू इट, it is don't just do it. Look before you leap. Just do it means following the mind. And leap, just look before you leap, is following the intelligence. Just think, discriminate, then you are following the intelligence. अगर आप कहते हैं अरे कर दो यार देखी जाएगी, who cares, then it is following the mind. जितना आप माइंड को फॉलो करेंगे उतना ही माइंड स्ट्रांग होता चला जाएगा। ठीक है, जितना आप इंटेलिजेंस को फॉलो करेंगे। आप एक कंपनी के अंदर, मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल, एक कंपनी के अंदर आप एक सीएफओ को ले आइए। नया नया सीएफओ आया, हाँ, पुराना सीएफओ चला गया, नया सीएफओ आया। अब सीएफओ ने कुछ डिक्लेयर किया, कल से सब लोग 9 बजे आएंगे, दिस इज माय ऑर्डर। लोग आए, हाँ, हु केयर्स। लोग 10 बजे आए, 9:30 बजे आए, किसी ने सुनी नहीं उसकी बात। उसने बॉस को जाके अपने सीईओ के पास चला, सीईओ मैंने आज बोला था 9 बजे। हाँ ठीक है, अभी आप आए हो, थोड़ा शांति से रहो, देख लो काम कैसा है। नथिंग हैपेंड। अगर ऐसा होता जाए होता जाए होता जाए तो क्या होगा? सीएफओ धीरे धीरे हवा निकलती जाएगी और छोटा सा रह जाएगा, क्योंकि नोबडी इज लिसनिंग। और यही हमें करना है माइंड के साथ, इंटेलिजेंस के साथ नहीं। सो नाउ वी विल गो इनटू सम रियल लाइफ साइंस सिचुएशंस। वी विल सी कृष्णा इंस्ट्रक्ट्स अर्जुना टू मेक योर इंटेलिजेंस स्ट्रांग। कैसे इंटेलिजेंस को स्ट्रांग बनाया जाए? वी विल लिसन सम लाइव एग्जांपल्स कि स्ट्रेस के हमारे लाइफ में कौन कौन सा एग्जांपल आता है, वहां पर हम इंटेलिजेंस को कैसे स्ट्रांग बनाया जा सकता है। एंड स्लोली आपकी ये हैबिट में, मेरी मेरी इच्छा है, मेरा पर्पस है, अगर मैं आपको ये आज सिखा के चला जाऊं कि दिस प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंस स्ट्रांगर, so that you can deal with any situation. We will discuss about 3 or 4 situations. Okay, let's begin this. So सबसे पहले भगवत गीता में ये बताया जाता है कि acts of sacrifice, charity and penance are not to be given up, they must be performed. Indeed, sacrifice, charity and penance purify even the great soul. I will not go into detail, but what you need to understand is austerity. We must perform austerity to be able to control the mind and make the intelligence stronger. Austerity क्या होती है? Austerity is not going into Himalayas. Austerity may be again listening to the intelligence and not listening to the mind. This is also austerity. जब माइंड कह रहा है खा ले बेटा, और माइंड कह रहा है बेटा सो जा, और इंटेलिजेंस ने कहा नहीं उठ जा, जिम जाना ही है, और ऐसे में अगर हम उठ जाते हैं, that is also an austerity. Waking up early in the morning is austerity. Okay, so now Bhagavad Gita tells us about some of the problems. Before we discuss further, what is the problem? What is the most common problem in the world? Making intelligence stronger. So listen carefully. Now we are discussing how to make intelligence stronger. अभी मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोगों की इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्गर बनाने का, बेस्ड ऑन द स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स हमें क्या बताते हैं? स्क्रिप्चर्स बताते हैं कि ये 7 प्रॉब्लम्स हैं, इससे कोई भी दूर नहीं जा सकता। ये 7 प्रॉब्लम्स आएंगी आएंगी। कौन सी हैं? जन्म मतलब बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीज। हाँ, अक्सर हमें ये प्रॉब्लम्स परेशान करती हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। व्हाट इज आध्यात्मिक? ड्यू टू द बॉडी एंड माइंड। बॉडी में कई सारी बीमारियां लग जाती हैं, माइंड कई सारे तरीके से हमें परेशान करता है। इसकी पत्नी मेरी पत्नी से सुंदर कैसे, इसकी सैलरी मेरी सैलरी से ज्यादा कैसे, व्हाटएवर। और उसके बाद आदि भौतिक, ड्यू टू अदर लिविंग एंटिटीज। मैं तो सब साफ ठीक ठाक चल रहा हूँ, मेरा बिल्कुल कार ठीक चल रही थी, पता नहीं ये भाई जी कहाँ से आए और उन्होंने एकदम से अंधा टर्न मारा तो मेरी गाड़ी में डेंट लग गया। आध्यात्मिक कलेश बाय अदर लिविंग एंटिटीज, मैं बढ़िया से चला रहा था। आदि दैविक,
बहुत ज्यादा ठंड, बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा बारिश, बहुत ज्यादा ऑल दोस थिंग्स। तो ये 7 प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ से कभी नहीं जाएंगी, ऐसा भगवान गीता में बोलते हैं। सो जस्ट होल्ड ऑन, ये थॉट को हम आगे यूज करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है। ओके, okay, I think this is what we have discussed. We'll go move forward. So these are some of the common problems we are going to discuss. Perceived threat is the first one. Now we are moving into the real fun of the presentation today. Some real life scenarios. Mind and stress. Perceived threat. Most of the time, stress का number one cause होता है what if. Fear of unknown. We don't know what the future will bring tomorrow. कल क्या होगा हम नहीं जानते, इसका बहुत भय होता है। व्हाट इफ जिससे मैं शादी करने वाला हूं, अगर वो मेरे टाइप की नहीं हुई, व्हाट इफ क्या होगा, कैसे जिंदगी चलेगी। व्हाट इफ मैंने एग्जाम तो दिया है लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो। व्हाट इफ इस बार मेरा प्रमोशन नहीं हुआ तो। व्हाट इफ मेरी सैलरी डिजायर्ड लेवल पे नहीं गई तो। एंड लॉट ऑफ थिंग। व्हाट इफ फॉरेन प्रोजेक्ट की अपॉर्चुनिटी थी, अगर मुझे ना भेज के किसी और को भेज दिया जाए तो। मतलब इससे पहले की प्रॉब्लम आए, प्रॉब्लम हमारे दिल में आ चुकी होती है और उसकी वजह से हम बहुत ही नाइटमेयर, दिन रात परेशान परेशान, सिगरेट चाय वटेवर, तो बहुत सारी चीजें करने लगते हैं। व्हाट इफ सो मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं, प्रभु जी सुनिए, हाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि, कहते हैं आप लोगों को तो बस एक ही चीज आती है। अरे भैया कुछ और भी बात कर लो। व्हाट इज दिस? हाँ, बर्थ एंड ओल्ड एज एंड डिजीज, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स। दिस इज पेसिमिस्टिक थिंकिंग। आप लोग पेसिमिस्टिक हो। सो ना तो ऑप्टिमिस्टिक बनने से कुछ होगा, ना ही पेसिमिस्टिक बनने से कुछ होगा, बिकॉज रियलिटी इज रियलिटी। वी कैन नॉट रन अवे फ्रॉम डेथ और बर्थ और वट एवर सिचुएशंस इन लाइफ। वी हैव टू बी रियलिस्टिक इन लाइफ, ठीक है। तो पहली चीज है व्हाट इफ को ना करके लेट्स फेस द प्रॉब्लम। जनरली व्हाट इफ के चक्कर में हम लोग सिचुएशन को फेस ना करके उससे भागते हैं, और तभी हम स्ट्रेस रिलीव करने के लिए ये सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक्चुअली में हमारी स्ट्रेस को और बढ़ा देती हैं, लॉन्ग रन में हमारे लीवर को खराब कर देती हैं, बहुत सारी समस्या आ जाती है। इसलिए आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फेस। फेस हम कब कर पाएंगे? हम फेस क्यों नहीं कर पाते हैं? हम फेस इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस बहुत वीक है। मे बी हम बहुत अच्छा डिजाइनर हैं, आपकी कंपनी में बहुत क्रिएटिव काम किया जाता है, बहुत अच्छे डिजाइन्स एंड एडवर्टीजमेंट्स एंड बहुत सारी बढ़िया चीजें बनाई थी, इट्स क्रिएटिव आर्ट, हमारा दिमाग बहुत तेज चलता है, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि वेदर आवर इंटेलिजेंस इज स्ट्रांग। जब हमारी इंटेलिजेंस स्ट्रांग होती है तो हम सिचुएशन को फेस करते हैं, हम रियलिस्टिक बनते हैं। सो वी विल डिस्कस सम ऑफ द रियल प्रॉब्लम्स which are fear of losing beauty, growing old, jara. So mind, this problem comes from the mind. Fear of getting old. कितने एक्टर एंड एक्ट्रेस के बारे में हम सुनते हैं। कोई एक्ट्रेस थी, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, आई थिंक शी वाज फॉरेन एक्ट्रेस। उसने जब पहली बार अपने गाल पे एक रिंकल देखा, झुर्री देखी, तो उसके बाद से उसने डिसाइड किया अब मैं बाहर नहीं जाऊंगी, क्योंकि उसने इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि मेरा चेहरा कभी बूढ़ा हो सकता है। जिस चेहरे को पूरी दुनिया ढूंढ रही है, वो क्या बूढ़ा भी हो सकता है। इट इज अ ग्रेट स्ट्रेस, राइट? बहुत बड़ा स्ट्रेस है। इसी स्ट्रेस को दूर करने के लिए बहुत बड़ी इंडस्ट्री चल रही है, जिसके अंदर बहुत सारे मेकअप्स, हाँ, हेयर कलर्स एंड प्लास्टिक सर्जरीज एंड लॉट ऑफ थिंग्स। माइकल जैक्सन इस फेयर से इतना परेशान था कि उसने बहुत बार अपनी प्लास्टिक सर्जरी करा करा के बहुत कुछ किया। एंड लॉट ऑफ पीपल आर रियली स्ट्रेस बिकॉज ऑफ this particular problem. So this is created by mind. And now intelligence, what the intelligence says. Bhagavad Gita 10.30, Krishna says, among subduers I am time. Also it is in Krishna, in Bhagavad Gita it is said, dehino asmin yatha dehe kaumaram yauvanam jara. Like there is a change of body since birth to getting older and older and older. Body continuously is changing. And similarly, the body gets old, and at the end, the body dies, and we get the new body. So, अगर हम इस फिलॉसफी को जानते हैं, तो we will take it easy कि हाँ, लाइफ में बुढ़ापा तो आना ही है, नॉट अ प्रॉब्लम। मेरी कुछ ड्यूटीज थी, मैंने अपने बचपन में वो काम किया, जवानी में जो मुझे करना था मैंने किया, बुढ़ापे में मैंने जो करना था किया। ऐसा तो नहीं होगा कि मैं यहाँ पर हमेशा रहूंगा। सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स हमेशा छूट ही जाएंगे,
रह ही जाएंगे. सो अंडरस्टैंडिंग इज इट इज कॉल्ड बीइंग रियलिस्टिक. सो व्हेन वी आर रियलिस्टिक एंड वी नो भगवत गीता इन विच इट इज सेड अमंग सबड्यूअर्स कालो अस्मि, भगवान कहते हैं कि मैं काल हूं और काल के रूप में वो सबको धीरे धीरे मार रहे हैं. एवरी ईयर वी आर गेटिंग ओल्डर एंड ओल्डर. आफ्टर एवरी बर्थ डे हम 1 साल लाइफ हमारी कम हो जाती है. नॉट टू वरी, कई लोग बड़े परेशान हो जाते हैं इस बात से, लेकिन वन हु नोज द गोल ऑफ हिज लाइफ, ही नोज दैट दिस इज बाउंड टू हैपन. और इस तरह से इस फिलॉसफी से वो अपनी नॉलेज को, अपने ब्रेन को या अपनी इंटेलिजेंस को स्ट्रांग बनाता है और इसको फेस करता है. लेट्स फेस इट. ओके, आई एम गेटिंग ओल्ड, नॉट अ प्रॉब्लम. बहुत सारे एक्टर थे. अमिताभ बच्चन एक जमाने में एक बहुत बड़ा हीरो था, लेकिन जब वो ओल्ड होने लगा तो उसको कोप अप नहीं कर पाया और उसने बीच में कुछ ऐसी ऐसी पिक्चरें बनाई जो सुपर फ्लॉप हुई. उसमें वो बूढ़ा हो चुका था लेकिन वो जवानी के रोल कर रहा था. आप जानते हैं उन सारी पिक्चरों को. वो पिक्चरें बहुत बड़ी फ्लॉप हुई, लेकिन जब उसने रियलाइज किया यस ओके इट इज ओके टू बी ओल्ड, तो उसने अपने रोल चेंज किए और देन ही बिकम अ सुपर हिट एक्टर अगेन. सो दिस इज अबाउट नोइंग द रियलिटी. जब हम रियलिटी को समझते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं. सो भगवत गीता टेल्स अस कि देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम. 2.13. once we know this philosophy कि body changes, it is the reality, so we are not bewildered, हम परेशान नहीं होते हैं इससे. ठीक है, तो this is called applying intelligence. Okay, this is the first case. Okay, mind and stress, the second problem. Time is running out. सवेरे ऑफिस में आते हैं, शाम को चले जाते हैं, न जाने कितने काम सोच के आते हैं, लेकिन उनमें से कितने काम नहीं होते हैं. मैं कुछ और ही सोच के आता हूं और कुछ और ही करके जाता हूं. आई थिंक मैंने 20-25 साल काम किया कॉर्पोरेट्स में. दिस इज द रियलिटी. हम सोच के तो कुछ और आते हैं, शाम को जाते हैं तो कुछ और ही काम करके चले आते हैं. इतने सारे प्रायोरिटीज, बॉस एंड एवरीथिंग कम्स इन बिटवीन. So this is another cause of stress. We are not able to manage the time. हाँ, so इसमें क्या करें? So mind gets troubled. कैसे करूं? ये करने का मन कर रहा है, वो भी करने का मन कर रहा है, माइंड में कुछ ना कुछ आता रहता है. ये काम कर रहा हूं तो दिमाग में कोई दूसरा काम चल रहा है कि उसका क्या होगा, उसका क्या होगा. So always either in the future or in the past. We never remain in the present. So क्या किया जाए? I think this is the basic theory which all of you know. Okay, I think the good news is we can stretch the session by 10 minutes. So very good. Okay, so the ultimate goal of life. So what we have to do is this is the quadrant. I think most of the people know about it. So what is urgent, not urgent, and important, not important. So one is important, urgent. So you try to understand this thing. So what is the meaning of urgent? Urgent means something has to be done now and now only. It may be important, it may not be important. How it is possible that something is urgent but it is not important? Why? Because it was not important, it was not urgent, but हमने उसको समय पर नहीं किया, इसलिए अब वो अर्जेंट बन गया है. काम बहुत ट्रिवियल है, छोटा सा काम है, इंपॉर्टेंट काम नहीं है. एक मेल डालनी थी किसी व्यक्ति को, जस्ट इन्फॉर्म करना था. कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं है, लेकिन जस्ट इन्फॉर्म करना था. मैं एक फॉरेन ट्रूप में गया था, माना उसका ट्रेवल एक्सपेंस मेरे को फाइल करना था. मैंने बना भी लिया था, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, जस्ट सबमिट करना था, लेकिन मैं भूल गया. एंड नाउ इट्स द लास्ट डेट. नाउ इट इज अर्जेंट, इट मस्ट बी डन नाउ. तो इसको कहते हैं इंपॉर्टेंट तो नहीं था लेकिन अर्जेंट बन गया. एनीथिंग विच इज अर्जेंट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ. तो आप पहले वो नोट कीजिए कि अर्जेंट क्या है, उसमें भी इंपॉर्टेंट क्या है और नॉट इंपॉर्टेंट क्या है. तो जो अर्जेंट है और इंपॉर्टेंट है उसको सबसे पहले करना है. उसके बाद में इसमें अर्जेंट में आपने 2 कैटेगरी बना ली, ऊपर और नीचे, इंपॉर्टेंट एंड नॉन इंपॉर्टेंट. दीज टू हैज टू बी कैटेड फर्स्ट एंड देन नॉट अर्जेंट. नॉट अर्जेंट में भी कुछ काम इंपॉर्टेंट है, कुछ काम नॉट इंपॉर्टेंट है. अगर हमने ये इंपॉर्टेंट काम जो कि अर्जेंट नहीं है आज डील नहीं किए या वटेवर डील नहीं किए समय पर, तो ये धीरे धीरे अर्जेंट बन जाएंगे और तब 11th आवर में हमें भाग के करना पड़ेगा. वी ऑल नो दिस फिलोसफी, दिस इज ऑल ज्ञान, बट प्रैक्टिकली हम इसको कर नहीं पाते हैं. क्यों नहीं कर पाते हैं? बिकॉज ऑफ अगेन इंटेलिजेंस इज वेरी वीक. ये बड़ा बहुत ही पुराना फंडा है कि एग्जामिनेशन में हम वही क्वेश्चन को करने लगते हैं जो सबसे इजी होता है, हमें सबसे ज्यादा आता है, और कई बार सारा समय हम उसी आसान क्वेश्चन को करने में निकाल देते हैं और हम देखते भी नहीं है ये तो केवल 5 नंबर का था, इसमें मैंने आधा घंटा लगा दिया.
उसी तरह से ऑफिस के अंदर भी जो काम थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, या जब हमें किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना होता है जो कि हमारे मूड का नहीं है, जो कि इरिटेटिंग है, हम उसको पोस्टपोन करते हैं, अंडर द कार करते हैं, इसको बाद में करते हैं, पहले इसको कर लेते हैं. सो वी एक्चुअली नेवर टेंड अप प्रायोरिटाइजिंग. सो आई विल टेल यू वन थिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू मेक वन थिंग. अगर आपको एक घड़ा दिया जाए और उस घड़े में आपको एक बड़े बड़े पत्थर डालने को दिए जाए, और कुछ छोटे पत्थर डालने को दिए जाए, और कुछ सैंड डालने को दी जाए, सैंड, और बोला जाए अब आप इनको इन तीनों चीजों को घड़े में डालना है, तो यू नो व्हाट लोग जनरली क्या करते हैं? लोग जनरली क्या कहते हैं, पहले बड़े बड़े पहले क्या करते हैं, सॉरी, रेत डाल लेते हैं. इजी थिंग, फटाफट रेत डाल दी, उसके बाद उसमें पत्थर डालते हैं, और फिर जो छोटे पत्थर डाल देते हैं, और बड़े पत्थर के लिए जगह ही नहीं बचती, सारी जगह तो रेत ने ली. लेकिन अगर हम पहले बड़े पत्थर डालें, फिर छोटे पत्थर डालें, और फिर रेत डाल दें, तो रेत तो कहीं ना कहीं अपने आप घड़े में चली जाएगी. सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज प्रायोरिटाइजेशन. हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं जॉब क्यों कर रहा हूँ. What is my reason of doing job? Is it because of family? I love my family, or I need a lot of money? I need to make my career. What is more important? उस चीज को अगर हम प्रायोरिटाइज करें और तब हम डिसाइड करें कि whatever anything related to family will come, I will give more priority. और फैमिली को अगर प्रायोरिटी देंगे तो हो सकता है मेरी प्रमोशन ना हो, बॉस बोलेंगे कि तुम लेट स्टेइंग, तो लेट स्टे करते नहीं हो, तो आई विल बी हैप्पी. हाँ, मैं लेट स्टे नहीं करता हूँ बिकॉज प्रायोरिटी इन माई लाइफ इज माई फैमिली. मे बी आई एम टेलिंग, किसी की नहीं भी हो सकती है. तो जब आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेंगे बेस्ड ऑन ए प्रायोरिटी, आप एक बात नोट कर लीजिए कि यू विल नॉट बी एबल टू डू एवरीथिंग. एक पॉइंट नोट कर लीजिए बस इस सब में से, कि वी कैनॉट डू एवरीथिंग. हमें कुछ करेंगे तो कुछ तो छूटेगा ही. अब उस क्या को छोड़ना है वो हमारी प्रायोरिटी पे डिपेंड करेगा कि लाइफ की प्रायोरिटी है. कृष्णा सेज इन भगवद गीता, वन हु इज रेगुलेटेड इन हिज हैबिट ऑफ ईटिंग, स्लीपिंग, रिक्रिएशन एंड वर्क कैन मिटिगेट ऑल मटेरियल पेन्स बाय प्रैक्टिसिंग द योगा सिस्टम. भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति रेगुलेटेड है हैबिट्स में, किसमें, ईटिंग, स्लीपिंग, रिक्रिएशन एंड वर्क, वो सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है. लेकिन वेरी सैड थिंग कि हमारे वर्क करने की कोई लिमिट नहीं. हमारे खाने का कोई समय नहीं है, हमारे सोने का कोई समय नहीं है. एक ही समय है, ऑफिस जाएंगे टाइम पे, लेकिन ऑफिस से कब आएंगे कोई समय नहीं है. सो आई माई रिक्वेस्ट टू यू, माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, मेक प्रायोरिटी इन लाइफ. व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू? योर फैमिली, योर मनी, योर करियर, वट एवर. आई एम नॉट सजेस्टिंग, उसको आज प्रायोरिटाइज कीजिए और फिर अकॉर्डिंगली अपने लाइफ को इस तरह से कैटेगराइज कीजिए. व्हाट इज अर्जेंट, व्हाट इज नॉट अर्जेंट. सो अर्जेंसी विल डिपेंड अपॉन योर प्रायोरिटी. Okay, so this way you can apply this philosophy of 6.17 Bhagavad Gita and regulate your eating, sleeping, recreation and work. You make sleeping का एक टाइम बनाइए, उसी वक्त सोना है, उठने का टाइम बनाइए उसी वक्त, उसके बाद एक्सरसाइज का एक टाइम बनाइए, खाने का एक टाइम, और ऑफिस का एक टाइम. यानी कि इस तरह से आप जिएंगे, भगवान कह रहे हैं कि आप तभी हैप्पी रह पाएंगे. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. ओके, फियर ऑफ लूजिंग इनकम. Okay, this is the stress, main reason of stress nowadays, कि ड्यू टू कोरोना बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, कंपनियों ने उनको डाउन साइज कर लिया, कई लोगों की नौकरियां चली गई, कई बिजनेस कम हो गए. सो इट्स अ ग्रेट फियर ऑफ लूजिंग इनकम, जॉब, वेल्थ, एंड माइंड अगेन क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिजायर्स कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं. व्हाट इफ अगर मेरी इनकम चली जाएगी तो मैं ये कैसे करूंगा, मैं ये कैसे करूंगा, मैं वो कैसे करूंगा. सो लेट्स थिंक अबाउट इट नाउ. अप्लाई इंटेलिजेंस, मेक द इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्गर. How? Okay. Avartam Jnanametam 3.39. Thus, the wise living entity's pure consciousness becomes covered by his eternal enemy in the form of lust, which is never satisfied and which burns like fire. Okay. Here it is said कि हमारी जो लस्ट है या हमारी जो ग्रीड है वो कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकती, चाहे हम कितना भी ग्रो कर लें. आप और मैं याद कीजिए वो दिन जब हमारी पहली जॉब लगी थी, जब हमने पहली बार जिंदगी में 10, 15, 20 हजार रुपए कमाए थे, तो हमें कितना अच्छा लगा था. और उस दिन के बाद से लेके आज तक वी आर नेवर सेटिस्फाइड. हमारी जॉब 20,000 से लेके 20 लाख के पैकेज तक चली गई, लेकिन हम सेटिस्फाइड नहीं हो पाए, बिकॉज भगवत गीता में 3.39 में भगवान कहते हैं कि इट नेवर सेटिस्फाइड्स, बर्न्स लाइक फायर. फायर में अगर हम फ्यूल डालें, तेल डालते हैं, फायर क्या मांगती है, मुझे पेट्रोल चाहिए, मुझे पेट्रोल. हम पेट्रोल डालते हैं, फिर क्या होता है, और तेजी से बढ़ती है. हाँ, जितना डालते जाएंगे उतना तेजी, नेवर सेटिस्फाइड.
पानी से तो हो सकती है लेकिन पेट्रोल से नहीं हो सकती है। तो यही बता रहे हैं कि जो हमारी डिजायर्स हैं हम उनको पूरा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जितना भी हम पूरा करने का प्रयास करेंगे उतनी वो डिजायर्स बढ़ती जाएंगी और कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाएगी। एक स्टोरी हम आपको सुनाते हैं छोटी सी। एक बार एक गांव के कुछ लोग होते हैं जो एक प्रोफेसर से पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते बहुत मेहनत करते करते कोई मैनेजमेंट गुरु बन जाता है, कोई आईआईटीएन इंजीनियर बन जाता है, कोई डिजाइनर बन जाता है, कोई अपनी कंपनी चला लेता है और वो सब आपस में कनेक्टेड रहते हैं। और एक दिन वो डिसाइड करते हैं क्यों ना अपने गांव वाले टीचर से मिल के आया जाए, बहुत दिन हो गए उनसे मिलने का मन कर रहा है। और वो कहते हैं हम बहुत स्ट्रेस्ड आउट हैं इस कॉर्पोरेट या इस शहरी जिंदगी से, चलिए अपने टीचर से मिल के आते हैं। तो ये टीचर से मिलने जाते हैं। तो टीचर वैसे का वैसे ही होता है आज भी जैसा वो पहले था। तो टीचर्स को सब अपनी सक्सेस स्टोरी बताते हैं, गुरुजी मैंने ये करा, मैंने ये करा, आज मेरे पास ये है वो है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सबके मुंह लटके हुए होते हैं और फिर वो अपनी प्रॉब्लम्स बताना शुरू करते हैं। मेरी वाइफ, मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं है, मेरे साथ ये समस्या है, मेरे साथ वो समस्या है, मेरे साथ ये, और वो खत्म ही नहीं होता, रोने लगते हैं वहां पे टीचर के आगे। और टीचर से बोलते हैं कि क्या करें हम ऐसी सिचुएशन में, हमने सब कुछ पा लिया जो हमने चाहा था लेकिन फिर भी हम हैप्पी नहीं है। वो टीचर के पास जाते हैं और टीचर बोलता है मैं तुम्हें बताता हूं तुम क्यों हैप्पी नहीं हो, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी। वो कहते हैं हाँ ठीक है। तो वो उनके लिए कॉफी बनाने जाते हैं। अंधेरा सा होता है कमरे में और फिर भी थोड़ी थोड़ी लाइट होती है, गांव सा होता है। तो वहां पर वो कॉफी बनाता है और कहता है व्हाई डोंट यू पिक योर मग्स। तो उन्होंने कॉफी मग्स रखे होते हैं वहां पर और कई सारे कलेक्शन होता है कॉफी मग्स का, और ये 4 लोग होते हैं। और थोड़ी देर में एक चाय कप कॉफी मग्स लेके बैठ जाते हैं और वो अपना केटल लेके आता है, उनमें कॉफी डालता है और कहता है दिस इज द प्रॉब्लम। कहते हैं क्या, व्हाट इज द प्रॉब्लम, कॉफी इज द प्रॉब्लम। नो नो नॉट द कॉफी, द मग्स आर द प्रॉब्लम। वो कहता है हाँ दीज मग्स आर द प्रॉब्लम। देखिए उस शेल्फ के ऊपर कितने सारे कप रखे हुए हैं, एक से एक बढ़िया और एक से एक घटिया। आप लोगों ने जो कप्स उठाए वो केवल वही कप्स उठाए जो बहुत ही एग्जॉटिक, बहुत ही बढ़िया, एकदम फाइन लुकिंग कप्स थे। हाँ, वो कप्स आपने उठाए और उसमें आप चाय पीने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो कॉफी मैं देने वाला हूं उस कॉफी का टेस्ट विल नॉट डिपेंड अपॉन द कप यू चूज। व्हाट इट इज मीन कि लाइफ में हमें कॉफी चाहिए या हैप्पीनेस चाहिए, इट डज नॉट मैटर हैप्पीनेस इज कमिंग फ्रॉम हायर इनकम or coming from love and affection. Somebody may be deriving a lot of happiness by simplicity, which a great person with great income may not be deriving. So उन्होंने बोला कि लाइफ में फोकस करना होगा कि हैप्पीनेस के ऊपर, जॉय के ऊपर, सेटिस्फैक्शन के ऊपर, मोर इंपॉर्टेंट सेटिस्फैक्शन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस? हैप्पीनेस इज शॉर्ट लिव्ड, सेटिस्फैक्शन लास्ट्स फॉर अ लाइफ टाइम। तो हमें फोकस करना पड़ेगा। हम बहुत सारी छोटी छोटी सेटिस्फेक्शन के चक्कर में, लस्ट के चक्कर में भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, एंड वी आर नॉट एक्चुअली डिराइविंग एनी सेटिस्फेक्शन। हम ऐसा सोचते हैं कि मे बी आफ्टर गेटिंग दिस कार आई विल बी सेटिस्फाइड पर्सन, बट जैसे ही वो कार सड़कों में सबको दिखने लगती है हमें लगता है ओ व्हाट इज द बिग डील, सबके पास है। तो इसी तरीके से कप्स उसने सिखाया कि अगर आप लाइफ को सिंप्लिसिटी की तरफ जाते और देखते कि वेयर इज द रियल हैप्पीनेस, we are missing the point. What I'm trying to say is income is not the source of your satisfaction. Satisfaction comes from within. It comes from a lot of other things which we will discuss now. I think the next within this is okay, we will discuss this point in detail about when I go to the next point, when I go to the I am the enjoyer point, where the satisfaction comes from if it is not coming from income. Okay, so another important thing is you have to apply this 3.39 on your income part. Whenever you are worried about income, just think that this eternal enemy in the form of lust is never satisfied, burns like fire. So I will not run after it. Whatever comes from my genuine efforts is okay. Whatever does not come, I am okay with it. Okay. Now want to control everything. This is the I'm going to tell you, this is the biggest reason of being under stress. So everybody is trying to control the other person. A mother-in-law is trying to control the daughter-in-law. An officer is trying to control his subordinate. Everybody, a father is trying to control his son. And in the course of this fight, we are getting stressed out because we are not the controller. Krishna says in Bhagavad Gita, Krishna says, Ki I am the controller.
So there's a great example of Hitler. He was always the controller, and when he lost control, he did suicide. So this is the reason of stress. When we think I am the controller, and this is a beautiful example of these two kids holding the hand of his father and crossing the road from the zebra crossing. They are not worried at all. Why? Because they are holding the hand of the father. So they are not the controller. So generally we think अगर हम controller बन जाएंगे तो हम satisfied रहेंगे. मेरे नीचे कितने लोग काम करते हैं, जितने ज्यादा मेरी टीम साइज होगा उतना ज्यादा मैं satisfied होऊंगा. No, not at all. Sometimes an individual contributor is more satisfied than a person who is holding a big team. जनरली बिग टीम वाला परेशानी रहता है किसी न किसी कारण से. आई एम नॉट सेइंग कि आपको टीम हैंडल नहीं करनी चाहिए, बट आई एम जस्ट टेलिंग कि trying to control more and more will not give you satisfaction. Instead, somebody higher is controlling you and you allow yourself to be controlled, you become happier. If you allow yourself to be controlled by your boss, because you have to work for boss, and there is a philosophy, boss is always right. अगर हम इसको अप्लाई करें लाइफ में, आप देखेंगे तो there is a great satisfaction out of this practical tip. So I think we should lose our control. We should allow others who are superiors to control us. Okay. I am the doer. Another thing, we generally tend to think that I am the doer, like a lizard. एक छिपकली को देखा आपने छत के ऊपर ऐसे चिपकी होती है. लिजर्ड को लगता है कि ये छत मैंने ही उठा रखी है, अगर मैं नहीं उठाऊंगी तो छत नीचे गिर जाएगी, मुझे यहीं पर रहना है. ऐसे हमें लगता है. मैं ऑफिस छोड़ जाऊंगा ना, समझ में आ जाएगा इन सबको, एक दिन में पता लग जाएगा मैं ऑफिस छोड़ दूं तो. मैंने बहुत सारी ऑफिस छोड़े अपने 20-25 साल के करियर में, लेकिन किसी कंपनी ने कभी रिग्रेट नहीं किया मेरे छोड़ने पर. एंड आई एम श्योर कि आपके छोड़ने पर भी रिग्रेट नहीं किया होगा. कंपनी का काम चलता रहता है, लोग आते जाते रहते हैं. व्हेन वी थिंक दैट अगर मैं नहीं करूंगा तो कोई नहीं कर पाएगा, दिस इज अ ग्रेट कॉज ऑफ आवर स्ट्रेस. जनरली ड्यू टू दिस वी डोंट ग्रो. हम अपना काम दूसरों को नहीं दे पाते हैं. we don't become a good manager. Who is a good manager? Good manager is a person जो दूसरों को काम दे पाए, उनको enable कर पाए, उनको educate कर पाए, उनको enthusiastic बना पाए, उनको inspire कर पाए और खुद चीजों को manage कर पाए. लेकिन जनरली ये थिंकिंग द आई एम द डूअर हमें ये सब नहीं करने देती और हम हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं. इसलिए अगेन कृष्णा सेज इन भगवद गीता दैट आई एम द डूअर, यू आर नॉट द डूअर, यू आर जस्ट वन ऑफ द डूअर. एंड इट इज सेड प्रकृति क्रिया मनानी गुना कर्म. ये दो श्लोक आप सुन सकते हैं, मेकिंग इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्गर. ये स्लाइड प्रेजेंटेशन आप ले लेना and you think about this situation. Whenever you think I am the doer, think about these two slokas, 2.47, 3.27. First one says that karmanyevadhikaraste ma phaleshu kadachan. You have the right to perform your duty, but you don't have any right on your result of the action. The result depends upon God, time, lot of things. And 3.27, it is said the spirit soul, the one who thinks that I am the doer, he is actually bewildered. He is fool number one who thinks I am the doer. It is said here, thinks himself the doer of activity that are actually carried out by three modes of material nature, 3.27. So I am not the doer. Okay, things will go very good without me also. Okay, so take your time. Take time to your priorities. So I am not the doer. And any important, this is very important circles, you know about it, area of influence, area of concern. We generally think a lot, thinking that I am the doer. I have to control the corona. Why Modi is not doing this? Why Modi is doing this? We are discussing, although we are not in control of anything. So generally, most of the time, we are thinking, we are talking about the things which are not in our control. Okay. So remember about area of concern and area of influence. Although we are concerned about a lot of things, but we don't have any practical control over the situation. Therefore, better think about the situation where we are the controller. Mostly we are the controller about myself only. My thinking process, I can control. So better control my thinking process. Why to try to control the thinking process of my wife? Why not I change my style of thinking? So that is the area of influence. Okay. I am the ultimate enjoyer. I think this is one of the last point we are discussing, and then we'll end today's session and 5 minutes of question answer maybe. So I am the ultimate enjoyer. Nobody else can enjoy. हाँ, मैं बहुत खुश था इस कंपनी में आके, थ्राइव में आके बहुत खुश था,
बहुत अच्छा काम है, बड़े एनर्जेटिक लोग हैं, लेकिन अचानक से एक दिन मैं प्रिंटर के पास गया और प्रिंटर के पास मैंने एक सैलरी स्लिप देखी, और जब मैंने देखा मेरे कुली की सैलरी मेरे से ज्यादा है, उस दिन से यहाँ पे काम करने का मन उखड़ गया। बिकॉज आई एम द एंजॉयर। अगर संसार में कोई एंजॉयर है तो केवल मुझे ही होना चाहिए, nobody else can enjoy. So this is the philosophy thinking. Whereas again in Bhagavad Gita, Krishna says 5.29, Bhokta Ram Yagatapasam Sarvaloke Maheshwaram. I am the enjoyer. Krishna says I am the enjoyer. So we should always think that I am not the enjoyer. There are a lot of other peoples who are living in this world. Ultimately, there is God who has created all of us. So he is the enjoyer. Actually, I am not the only enjoyer. So we should allow others also to live in this life. Slowly we should develop this philosophy. हाँ, हम जब ट्रेन की बैठते हैं मेट्रो में तो सीट खाली होती है, हम बैठ जाते हैं। अगर साइड वाला सीट खाली कर देता है तो हम ऐसे फैल के बैठ जाते हैं। होता है कि नहीं? So we want to enjoy unlimitedly. We don't want allow others to enjoy. So ये problem है. I think go to 5.29, make your intelligence stronger and control the mind this way. हाँ, माइंड को हमें याद रखिए, हमें माइंड को कमजोर बनाना है और इंटेलिजेंस को स्ट्रांग बनाना है बाय ऑल दिस एग्जांपल्स। ओके, सो अल्टीमेट जॉय इज इन सर्विस। जो मैं कहना चाह रहा था कि इनकम से नहीं है जॉय। आप देखेंगे आफ्टर अर्निंग so much, बिल गेट्स is actually getting joy. He left everything. Microsoft. He's just a mentor kind of person now. Now he's going to all these charities. अब आप बोलेंगे कि अब उसने कमा लिया है ना? नहीं, वो जो जिस तरह के लाइफस्टाइल जी रहा है, आप देखेंगे कि नॉर्मल अर्निंग पर्सन भी इस लाइफस्टाइल को जी सकता है। He's not enjoying all those money. He's enjoying this service. So slowly you will understand that giving gives you satisfaction instead of getting. This is a very different philosophy I'm telling you, but you can see from the light of great people, Mother Teresa, and this person, they learned that there's great joy in giving. For example, I am giving this session. I'm telling you, I'm not earning anything from your Thrive. मेरा कोई और intention नहीं है. I'm not getting any money for this session, but I am getting joy if I am able to bring some light of happiness, inspiration in your life. That is my source of joy. So you will slowly understand that giving is actually living. So living is giving. So not earning or not anything else. Okay. So I think this is the session we wanted to talk. So in nutshell, you have to make your intelligence stronger by scriptural knowledge. So I would recommend you to read Bhagavad Gita. Bhagavad Gita is not for Aarti, doing Aarti, not for your grandmother. It is for you and me to read and inspire our life in the right direction.